Good morning. In continuation of last class, today topic is impure substance. Matter, two part, pure, impure. In impure, two or more type of particle present in substance. An example of impure is also known as mixture. Two type of mixture, homogeneous and heterogeneous. Two type of mixture. Matter divided into two groups, pure and impure on the basis of particle. If only one kind of particle is pure, if two or more than two type of particles, then impure. Impure substance also known as a mixture. Mixture is two type, homogeneous mixture and heterogeneous mixture. In homogeneous mixture, uniform composition. Throughout the mixture, uniform composition. If two and more than two type of element or compound uniformly mix, then homogeneous mixture is formed. When element or compound mix with non-uniformly, then heterogeneous mixture is formed. So if uniform होंगे तो homogeneous होगा, uniform नहीं होंगे so heterogeneous होगा. Solution is an example of homogeneous mixture. Solution. Example, sugar, water, मिक्सचर का लीजिए आप. वाटर लेंगे, शुगर लेंगे, मिक्स करेंगे एंड देखेंगे कि यूनिफॉर्मली हो जाएगा. वाटर में शुगर डिसअपियर हो जाएगी, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगी एंड चेंज द टेस्ट ऑफ वाटर ऑल्सो. तो इन दिस शुगर वाटर मिक्सचर टू कंपोनेंट, वन इज solute and another one is solvent. Solute and solvent. Sugar जो होगा behave like a solute and water is solvent. Less amount में जो component होगा that is known as solute and जो more amount में होगा, larger amount में होगा known as solvent. Solute होगा and solvent. On the basis of solute and solvent, solid, liquid, gas type of mixture. Also example have solid type of, this is the liquid होगा, so sugar solution, but also we have solid. Suppose alloy. Alloy is a alloy. Also example of homogeneous mixture. In case of alloy, metal, non-metal mix in a proportion and form a alloy. This is suppose brass. Brass है, alloy का है. इनमें metals जो होंगे वो mix करके heat करेंगे and उनके जब वो liquid form में आ जाएंगे एक ratio में mix करेंगे and then when cool then form a alloy. So alloy is also a kind of mixture. Air is also a mixture of different gases. Air is also a homogeneous mixture. So these are the homogeneous mixture. Solution of sugar and water में sugar जो होगा वो solute होगा and जो water होगा वो solvent होगा. जैसे iodine alcohol solution में iodine solute हो जाएगा and solvent जो हो जाएगा वो alcohol हो जाएगा.
Aerated drink, cold drink. Cold drink is also example of homogeneous solution. In case of cold drink, gas dissolve in water. So gas is carbon dioxide, gas dissolve in water. तो carbon dioxide gas is solute and solvent जो होगा वो water होगा. So according to this definition, lesser amount में जो होगा known as solute and जो larger amount में होगा known as a solvent. So on the basis of solute and solvent amount, we find out the concentration of solution. On the concentration of solution, two type of solution possible: saturated or unsaturated solution. Saturated solution or unsaturated solution. सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बेसिस पे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. द डिसॉल्विंग ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर. एट द कांस्टेंट टेम्परेचर द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी. एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, एक फिक्स टेम्परेचर पे जितना अमाउंट सॉल्यूट का डिसॉल्व होगा, that is known as solubility. In saturated solution, if no more solute dissolve at the constant temperature, when solution no more solute is dissolved, then known as a saturated solution. If more solute dissolve at the constant temperature, then unsaturated solution. So saturated and unsaturated solution. तो सैचुरेटेड सोल्यूशन में क्या हो जाना है कि एट द गिवन टेम्परेचर जो कांस्टेंट टेम्परेचर है उस पर अगर और सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है तो सोल्यूशन जो होगा वो अनसैचुरेटेड होगा. इफ कांस्टेंट टेम्परेचर नो मोर सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन द सोल्यूशन, देन सोल्यूशन इज सैचुरेटेड. सैचुरेटेड के लिए उस फिक्स कांस्टेंट टेम्परेचर पे और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होता है, बट अनसैचुरेटेड में डिसॉल्व होता है. सो हम उसके हमारे पास फॉर्मूलेज हैं दिए हैं जिनकी बेसिस पे आप कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. कैसे निकालते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन concentration of solution equal to amount of solute upon amount of solution. With the help of this formula, you find out the concentration of solution. What amount of solute dissolve in amount of solution. And solution also known as a solvent. इसी को solvent भी बोल सकते हैं. And mass by mass परसेंट ऑफ सोल्यूशन भी निकाल सकते हैं. मास की बेसिस पे भी कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. सो मास बाय मास सो इसके लिए आपको लेना पड़ेगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन.
इंटू 100। अगर आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो कंसंट्रेशन का जो परसेंटेज निकलेगा, कितने परसेंट का सॉल्यूशन आपका बन रहा है। सो आप मास बाय मास कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का परसेंट आप निकाल सकते हैं। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 के बेसिस पे। कंसंट्रेशन क्या है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट। कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट में आ रहा, डिसॉल्व हो रहा है मैक्सिमम, वो उससे कंसंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं। सो मास बाय मास कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन परसेंट अगर करना है, सो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वॉल्यूम की बेसिस पे अगर करेंगे तो वॉल्यूम लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा यहाँ पे। एक तो तरीका ये है मास बाय मास करना है, मास बाय वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा मास बाय वॉल्यूम। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। दोनों फॉर्मूले हैं, दोनों तरीके से अगर आपको वॉल्यूम के बेसिस पे निकालना है, सो आप यहां पे मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कर देंगे। सो इंटू 100% निकाल रहे हो। सो ऐसे करेंगे तो ये आपका मास बाय वॉल्यूम कैलकुलेट होगा। व्हेन यू राइट डाउन द मास लिखेंगे, सो सॉल्यूशन का अगर मास लेंगे तो मास बाय मास, दोनों तरीके हैं। आप इससे भी कर सकते हैं और इससे भी कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। आपके कोर्स में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इस पर बेस्ड है। आई विल कंटिन्यू दिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। परसेंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, परसेंटेज ऑफ कंसंट्रेशन। ए सॉल्यूशन कंटेन, फर्स्ट यू रीड द न्यूमेरिकल। अ सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ मास बाय मास। जो भी आपको दिया रहेगा उसी फॉर्मूले, दोनों फॉर्मूले में से उसी को सेलेक्ट करेंगे। मास बाय मास, परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। So first you write down the given value. Mass of solute क्या 40 ग्राम, and water का mass, mass of solvent mass of solvent 320 ग्राम है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट 40 प्लस 320, 360 ग्राम। फॉर्मूला ऑफ कंसंट्रेशन, परसेंट ऑफ कंसंट्रेशन। किसे बोल रहा है? मास बाय मास, मास बाय मास मेथड। सो फॉर्मूला आपको लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूट का 40 ग्राम है एंड सॉल्यूशन का 360 इंटू 100। फॉर्मूले में होता है ना इंटू, परसेंट निकालना है, परसेंटेज बोल रहा है तो 100 करेंगे। मैंने सॉल्व करेंगे, 0 0 कट हो जाएगा, 4 9 जा, और 100 अपॉन 9 परसेंटेज क्या हो जाएगा? 1.1 11.1%. So like this you solve
the question and find out the value and percent of concentration of solution.